अगर महिलाओं की विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने सभी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की अपील की। Girls, you are lucky and fortunate, very lucky that we are discussing today, because the marathon march for Viksit Bharat at 2047 is already going on. You are the most important stakeholders of it. You have to drive it. सबसे पहले it is important to know what is that we are striving to achieve. Developed nation status. What does it mean? It has not been defined, but it means mature, sophisticated, formal economy. Number one, we are heading towards it very fast. Number two, robust industrial ecosystem. The nation is on track. Higher standards of living. सोचा था कभी हर घर में टॉयलेट होगा, सोचा था हर घर में गैस कनेक्शन होगा, सोचा था हर घर में इंटरनेट होगी, सोचा था हर घर नल होगा, नल में जल होगा। 140 करोड़ के देश में यह सोचते हुए भी डर लगता था। जब मैं संसद में आया, हमें 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। 50 एक एमपी को, ताकत थी उसकी। 15-17 करोड़ तो नीडी लोगों को दे ही दिए, हर किसी को उपलब्ध भी है। कहां से कहां आ गए? ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनको हमें एंटीसिपेट करना चाहिए और न्यूट्रलाइज करना चाहिए? चुनौतियां हैं एंटी नेशनल नैरेटिव्स। पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है और कुछ लोग कहते हैं यहां कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी बोल देते हैं। क्या वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं? आर दे कीपिंग नेशन अबव नेशनल इंटरेस्ट, देयर ओन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट? I appeal to you, when it comes to national interest and development, we have to keep aside political, partisan and self-interest. मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर भी seductive commitment to government job, coaching centers is very painful to me. When I see those advertisements on front page, एक एक पैसा उस एडवर्टीजमेंट का उस बच्चे बच्ची से आता है। Commercialization of the crudest form. We have to de-silo the opportunities. There are opportunities available in sea, on land, in sky, and in space. I have been to ISRO, and you cannot imagine what opportunities are there. आप लोग be fully updated कि opportunities कहाँ कहाँ हैं. India no longer is a sleeping giant. It is no longer a country with potential. It's a country that is on the rise. The rise is unstoppable and it is incremental.
ये होकर रहेगा, but this is not possible. If 50% of people in this country are not participants, we cannot achieve fastest developed nation status unless our girls and women participate. They have energy, they have talent. We have to create an ecosystem for their optimal participation. It cannot happen otherwise. The very thought of India, a developed nation, without participation of girls and women is not a rational thinking. आपकी भागीदारी से विकसित भारत का सपना 2047 से पहले पूरा होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लक्षणात्मक रोग कहे जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती, वह समाज सभ्य समाज नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बेटियां और महिलाओं के मन में डर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। और जहां औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है, वो डेमोक्रेसी कलंकित है, वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। और आज के दिन द फियर इन द माइंड ऑफ आवर गर्ल्स एंड वीमेन is a cause of concern. It's a national concern. How can in land of Bharat girls and women be unsafe? How can their dignity be outraged? How can there be rape and murder in hospital when girl doctor is in service of humanity, saving lives of others? This is painful. It happened in 2012. It happened in 80s also, Mathura. A lady who was molested in a police station, but acquittal was there on technical grounds. इसलिए आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रपति who is a tribal woman, who has seen grassroots reality, she was constrained to express herself. I appeal to all the girls to read it. I'll share the copy of a statement with the principal. What the president has said, enough is enough. Let us call it enough is enough. I want this clarion call to be national call. I want everyone to be participant in this call. Let us resolve, create a system no longer. Zero accommodation, zero tolerance. When you make a girl or woman victim, you are injuring our civilization. You are injuring sublimity. You are behaving like a monster. You are exemplifying barbarity to an extreme draconian level. Nothing should come in the way. And I want everyone in the country to heed the sane, sage, and timely caution by the President of India. I am appalled
I am pained and somewhat surprised that someone holding a position in the Supreme Court bar, a member of parliament, acting in a manner, and what does he say? A symptomatic malaise, and suggested that such incidents are commonplace. What a shame. Words fail me in condemning such a stance. It is doing greatest injustice to the high position. But I am glad members of the bar have come in support of our girls and women. For partisan interest, for self-interest, you take a stance, leveraging your authority to perpetrate such kind of heinous injustice to our girls and women. And here one says it is symptomatic, malaise, incidents are commonplace. I strongly condemn it. The relieving feature is that members of the bar have risen in unison to come in favor of girls and women. What can be greater injustice to humanity? We trivialize suffering of our girls? No, not any longer. भारत आज पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का नया नाम बन गया है। भारत मतलब वो देश जो संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत मतलब वो देश जो युवा जोश से लबरेज है। भारत मतलब वो देश जो आज वैश्विक मंच पर सबकी आवाज बनकर उभरा है। इसी तरह भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदले हुए भारत की तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने के मद्देनजर विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के डिजिटल लेन देन भारत में तत्काल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में फिनटेक स्टार्टअप में रिकॉर्ड इजाफे के जरिए भारत की उभरती ताकत को दुनिया के साथ साझा किया। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड न हो। एक दशक में ही भारत में
ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जनधन, आधार और मोबाइल की इस ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की सफलता का भी जिक्र किया। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए रेगुलेटर से साइबर फ्रॉड रोकने और लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने
एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में फिनटेक सेक्टर द्वारा लाया गया बदलाव केवल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। ये भी फिनटेक्स के बिना संभव नहीं था। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। एआई के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं। इसलिए भारत ने एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मुंबई में GFF प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवाचार दर्शाए गए हैं। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है।